Hi. It's been so long, very long. India, you know, a country is very known for its multicultural aspect. When you talk about the people, when you talk about the society, when you talk about the culture, when you talk about the language, dialects, foods, flora, fauna, vegetation, the flowing of the river, drainage systems, everything. Arrival or advent of the people in the multi waves into the country not only marks the ethical culturalism, multiculturalism on the territory, but you must have heard about the right now plate tectonic and the development of the Himalayas. So this all feature actually has led to the creation of the diversific landscape on the territorial spread of the country that actually lies from the length on the breadth of the country. So the kind of kaleidoscopic uh, diversity you talk about in terms of people, or you terms in any terms you talk about, you can't deny that it is given the fact that इन सब चीज़ों की वजह से ही इंडिया में वेरिएशन के बारे में, वेरिएबिलिटी के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में हम बात कर पाते हैं। आज की टॉपिक कुछ एक ऐसी ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में है जो कि इस चीज़ की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और पॉलिसी बेस्ड, एनवायरमेंटल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सैंक्टिटी को फिर से रिफॉर्म और रीएस्टैब्लिश करती है। We have been known about the patent, copyrights, and the other aspect of the IPRs, intellectual rights, right? Intellectual property rights. But एक topic जो है that actually very lately started to take place or actually came into the knowing of a lot of people is GI tags. And it is in this continuation that this topic is also one of the more least discussed topic for the UPSC prelims examination. You know कि बहुत सारे टॉपिक्स अगर आप अगले पिछले 15-20 सालों के बारे में अगर आप देखते हो, जानते हो, यूपीएससी के प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहे हो, तो इफ यू टेक द क्वेश्चंस एंड अलोंग विद देयर ऑप्शंस, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आज की डेट में, आज की क्लास में जीआई टैग्स के बारे में हम इस चीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे कि व्हाई इट इज़ एन क्विटेंशियल टॉपिक फॉर योर फोर्थ कमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशंस। व्हाट आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस जीआई टैग्स, दैट हिस्टोरिकल और कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिसी बेस्ड, इंटरनेशनल ट्रेड, और इवन you can say that like environmental. This is one of the most underrated topic of UPSC, but you can see that in at least a decade, on the 3 to 4 occasion, a question has been asked, and not only that, this is one of the one of those topic of the UPSC that futuristically set the benchmark to be actually categorized under GI tags, right? So yes. My name is Ashil Pridarshi, and for the forthcoming session for the UPSC aspirant for the upcoming UPSC examinations, I am conducting this special session for you. So, जैसे कि मैंने बोला कि this question on the at least 3 to 4 occasion, if you take last 10 years, this question this topic has been asked. See with the evidence. In 2015, there was a question: which of the following has been accorded geographical indication status? Banaras brocade, Ansaris, Rajasthani, दाल भात चूरमा, तिरुपति लड्डू। 3 साल के बाद India enacted the Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999 in order to comply with the obligation of ILO, IMF, UNCTAD और WTO। फिर उसके 4 साल के बाद देखो कि with reference to Gucci, sometimes mentioned in the news, consider the following statement: it's a fungus, it's grown in some Himalayas forestry areas, it is commercially cultivated in the Himalayan foothills of
नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो बाय द टाइम इस टर्म के बारे में आपने जाना था, इट्स अ काइंड ऑफ मशरूम, आपने जाना था, ये ना लोगों के द्वारा अप्लाई कर दिया गया था रजिस्ट्रेशन के लिए, जीआई के लिए, एंड हाउ इट एक्चुअली केम इनटू द न्यूज़। तो जब 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था तब तो ये प्रोसेस में था, बट नाउ इट हैज़ एक्चुअली गिवन द जीआई टैग स्टेटस। इसके अलावा भी दो क्वेश्चन हैं दैट एक्चुअली आई ट्राई टू गेट, बट दिस आर वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन ऑफ द टॉपिक। तो अब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज इन डेप्थ जीआई इज। डेफिनेशन पे जाते हैं दैट एक्चुअली मेक्स इट द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग टू बी आस्क्ड इन द फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो डेफिनेशन बेस्ड भी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि 2015-16 में इकोसिस्टम के बारे में पूछा गया था। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स आर टिपिकली ऑफ प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है यूपीएससी के हिसाब से कि आईपीआर ये बनता है, ठीक है। दैट प्रोवाइड्स अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड डिस्टिंक्टिवनेस लिंक टू द प्रोडक्ट ऑरिजिन इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन, रीजन और कंट्री। तो अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी देती है, डिस्टिंक्टिवनेस देता है, एंड स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर रीजन या कंट्री। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेलिटी, रीजन या फिर कंट्री? तो कंट्री कुड बी अ स्मॉल एंटाइटी और यूनिट। मान लो कि इंडिया जैसा वास्ट नहीं होगा, क्योंकि जीआई जो वो सिर्फ इंडिया के लिए तो नहीं है, वो वर्ल्ड ओवर फिनोमिनन है, एंड दैट इज व्हाई इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यू कैन से। When you say about locality or region, so let me give you two incidents. जब आप आपने एक नमक के बारे में सुना, राइस के बारे में सुना होगा, काला नमक राइस। तो ये आपकी जो पूर्वांचल और तेराई का जो रीजन है यूपी का, वहाँ पे ये पाया जाता है, खास करके महाराजगंज के रीजन के और देवरिया के रीजन में आसपास में। सो व्हेन आई सी इट इज फाउंड इन 2 or 3 or 4 मोर डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। तो इसकी जो लोकेलिटी है, वो जो एक्सपेंशन है, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन है, दैट इज मोर देन अ टाउन और सिटी और इवन अ गिवन स्पेसिफिक एरिया। एक सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूँ बिहार से। बिहार में पटना के बगल में खाजा, जो कि एक खाने की पदार्थ है, मिठाई के तौर पे खाई जाती है। सिलाव का खाजा फेमस है राजगीर और पटना के जगह पे। तो वो एक स्पेसिफिक जगह है, हो सकता है कि थोड़ा सा 2-4-5 किलोमीटर भी उसी टाइप की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसको एक अगर आप होलसम प्रोसेस पे देखोगे तो इट एक्चुअली कम अंडर द सिलाव, राइट। तो सिलाव व्हेन वी टॉक अबाउट इट बिकम्स द लोकेलिटी, व्हेन यू टॉक अबाउट द काला नमक राइस इट बिकम द रीजन। और कोई भी कंट्री स्पेसिफिक, आगे हम एक 2 एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि लेंगे तो उसको हम एक कंट्री स्पेसिफिक बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि दिस सर्टिफिकेशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेपुटेशन। तो वाई जीआई टैग्स, उसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड रेपुटेशन। इसमें हम तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रसगुल्ला, बंगाली स्वीट, जो कि बंगाल और उड़ीसा के बीच में था रसगुल्ला को लेकर के। तो हमने बनारसी रसगुल्ला के बारे में, रसगुल्ला के बारे में बहुत सुना है। तो उसके बारे में ही नाम से आपको क्या जानते हो, बंगाली तो एक रेपुटेशन जानते हो, और उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होगी, क्योंकि आपने रसगुल्ला तो ऑल ओवर इंडिया मिलती खाई होगी, लेकिन जो उसकी जो आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी है, वो प्रिजर्व होती है बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक रीजन, और उसी को ही जीआई से हम इंश्योर करते हैं। तो एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरियाज, इंश्योरिंग कंज्यूमर रिसीव ऑथेंटिक एंड क्वालिटी गुड्स, सपोर्टिंग लोकल इकोनॉमीज एंड ट्रेडिशन। ठीक है, साड़ियाँ बहुत पहनते हो, लेकिन जब आप बनारसी साड़ी के बारे में बात करते हो तो बनारस एक जगह है जहाँ की साड़ी के बारे में बात कर रहे हो, तो एक जियोग्राफिकल वेरिएशन आती है। फिर उसमें क्या एक प्रोडक्ट है जो कि इन द उसकी जब आप देखोगे कैटेगराइजेशन, तो वो साड़ी में आएगी। और फिर उसकी रेपुटेशन जो होती है, उससे क्या होता है, जो वहाँ के बुनकर समाज होते हैं, वीवर्स होते हैं, हैंडलूम इंडस्ट्री है, उसको हेल्प मिलती है डेवलपमेंट में, इन द प्रॉस्पेरिटी में, इकोनॉमिकली एंड ट्रेडिशन को कंटिन्यू करने में। तो हियर्स हाउ इट ensures, GI ensures the thing. Next point is GI tags are commonly used for art, craft, food stuff, agricultural product, handicraft and international good. ठीक है, ये कैटेगराइजेशन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हियर।
becomes very important here. आर्ट्स में भी है, क्राफ्ट में भी है, फूड स्टफ में भी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी, हैंडीक्राफ्ट में भी है और इंडस्ट्रियल गुड्स में भी है। तो मुरादाबाद का पीतल इंडस्ट्री भी इसके अंदर में आता है। तो टोटल की टोटल इसके अंदर 34 क्लासेस ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसके अंडर मेन प्रोडक्ट की कैटेगराइजेशन होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि जीआई रजिस्ट्रेशन इज गिवन टू एन एरिया नॉट एन इंडिविजुअल। तो मान लो कि अगर मैं किसी एरिया में, हमारे एक एरिया में कुछ फेमस है, ठीक है, तो मुझे नहीं मिलेगा बिकॉज आई एम नॉट द ओनर ऑफ द एनी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। मेरे उस एरिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग उस चीज़ से रिलेटेड हैं, उसकी ट्रेडिंग से, उसके प्रैक्टिस से रिलेटेड हैं, तो जीआई उनको मिलता है। हाँ, इन द केस आई कैन अप्लाई फॉर द जीआई प्रोसेसेस इंडिविजुअली, बीइंग एन एनजीओ, बीइंग अ ट्रेडर एसोसिएशन, बीइंग एन स्पेसिफिक एनीथिंग, बीइंग कुछ भी उस चीज़ से रिलेटेड, मैं उस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता हूँ, बट एन इंडिविजुअल मुझे नहीं मिलेगी। Now this is the very important conceptual clarity for the UPSC upcoming preliminary examination on topic of GI tax। ठीक है, एक जगह को मिलती है, एक एसोसिएशन उसके लिए अप्लाई करती है, एनजीओ अप्लाई करती है। इसको अगले टॉपिक में भी देखते हैं, पॉइंट में भी देखते हैं। तो वंस अ प्रोडक्ट गेट द जीआई रजिस्ट्रेशन, जीआई लोगो कैन बी कमर्शियली यूज्ड। जैसे कि अगला एग्जांपल लेते हैं दार्जिलिंग की चाय। तो दार्जिलिंग बहुत सारे चाय उगाने वाले लोग हैं, तो वो सब उस कोई लोगों को और नाम को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दार्जिलिंग की चाय दे रहे हैं, उसके बगल में आसाम की चाय है, वो यूज नहीं करते हैं। सो दिस शोज द पेक्युलरिटी ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम अ रीजन। सेकेंड, एनी ट्रेडर्स बॉडी, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ कैन अप्लाई फॉर द टैग। दिस इज द मोस्ट अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। द एप्लीकेंट्स नीड टू प्रोवाइड द यूनिकनेस ऑफ द आइटम विद हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ हाउ द प्रोडक्ट इज मेड। तो उसकी यूनिकनेस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा, वो प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा आप समझ लो कि नीड टू प्रूव द यूनिकनेस, ये प्रोसेस का पार्ट होता है कि जीआई जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फाइलिंग करोगे, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ऑथराइज्ड ट्रेडर्स, एनजीओस आर ईच असाइंड अ यूनिक जीआई नंबर एज आई सेड अर्लियर। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड under the Ministry of Commerce and Industry awards the GI tax in India. This is the another important point कि Department of Promotion of Industry and Internal Trade, ठीक है, कौन करता है और ये किसके अंडर आता है? तो Ministry of Commerce and Industry। तो these award the GI tax in India. This is important point from the preliminary point of view. Next, India as a member of WTO has enacted the Geographical Indicators of Good Registration and Production Act 1999, which came into force in 2003. इसको आप इस हिसाब से याद रखो कि पूरी की पूरी जो प्रोसेस कंप्लीट हुई है वो वाजपेयी के सेशन में कोइंसिडेंटली हुई है, नॉट स्पीकिंग पॉलिटिकली। तो जैसे कि मैंने आपको 2018 क्वेश्चन दिखाया था कि किसके अंडर में आता है, WTO के अंदर में आता है। दिस मेक्स द इट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि WTO के अंदर में आती है। कैसे आती, कौन सी एक्ट आती है, इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन वेरिएशन के साथ पूछा जाता है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, इसको याद रखना, ऑफ गुड्स वो भी याद रखना, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 और किस साल फोर्स में आई थी इसको भी याद रख लो, 2003। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाती है। इट इज गवर्न एंड डायरेक्टेड बाय WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स। ट्रिप्स का फुल फॉर्म आप जानते हो, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपने ट्रिप्स पढ़ा होगा, ट्रिप्स पढ़ा होगा, WTO के बारे में जब अपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड की ये सब वेरियस एस्पेक्ट है जिनको आप जानते हो। ये किसके अंडर में IPR आते हैं, GI आते हैं, तो वो ट्रिप्स के अंडर में आते हैं, ठीक है। अगला जो है कि पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, उसके अंडर में जो एलिमेंट्स हैं वो कवर होते हैं और उसके आर्टिकल 1 के क्लॉज नंबर 2 और 10 में, आर्टिकल 10 में ये कवर होते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट फिर भी यहाँ पे फैक्चुअल चीजें वो जान जाओ। रजिस्ट्रेशन, जो GI की रजिस्ट्रेशन होती है वो 10 साल के लिए होती है अंटिल रिन्यूड। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है UPSC अपकमिंग एग्जामिनेशन में कि इसकी वैलिडिटी होती है 10 साल के लिए इनिशियली, हाउएवर अंटिल रिन्यूड। अच्छा, ये सब आपने पढ़ा है तो आपको लगा होगा कि यार कोई भी प्रोडक्ट जो है इंडिया का है वही रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एलिमिनेशन जो मेथड के लिए होता है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि
ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट को ही सिर्फ जीआई का जो टैग है वो इंडिया में मिलता है, तो बाहर के भी देशों के प्रोडक्ट को इंडिया में जीआई का स्टेटस मिलता है। जैसे फॉरेन प्रोडक्ट्स आल्सो गेट्स जीआई टैग इन इंडिया, लाइक पेरुवियन पिस्को पेरू, शैंपेन फ्रॉम फ्रांस एंड टकीला फ्रॉम मैक्सिको। तो जब आप टेकीला या शैंपेन के बारे में आपने नाम सुना होगा, ये सब बाहर की चीजें हैं, तो इनको जीआई टैग क्यों इंडिया में मिला है? बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक प्रॉपर्टी दैट एक्चुअली इंश्योर, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि एक रीजन से, कंट्री से, एक स्पेसिफिक जगह से, एरिया से वो होती है, ये कंट्री स्पेसिफिक है जो कि उसको इकोनॉमिक कंडीशनिंग दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है, कि उनकी वो आईपीआर जो है, उनकी जो इकोनॉमिक जो एडवांटेजेस है उसको वो इंजॉय कर सके, ठीक है। तो जैसे कि फ्रांस को जाता है या टकीला मैक्सिको को जाता है, इन द ईदर केसेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईपीआर के जीआई के बारे में, जो कि आपको याद रखना है कि ओनली नॉट द लोकल और द डिसीज प्रोडक्ट गेट जीआई टैग्स, बाहर के मिलते हैं, एंड सो इंडिया के भी जो कुछ प्रोडक्ट होंगे उनको भी बाहर में मिलेगा, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बेनिफिट्स ऑफ जीआई। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कॉन्सेप्चुअली ये चीजें पूछी जा सकती है कि आखिर जीआई किसी प्रोडक्ट को क्यों मिलता है। मान लो कि ये तो अभी तक था कि जीआई के डेफिनेशन क्या हुआ, चाहे इसके अंडर में क्या हुआ, कौन से एक्ट्स थे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द इकोनॉमिकल फिजिबिलिटीज, थिंग्स दैट एक्चुअली मेक इट वेरी फिजिबल टू गेट इट रजिस्टर्ड और द टैग अंडर द जीआई थिंग। तो फर्स्ट इज लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का लीगल प्रोटेक्शन। जैसे कि कल में आपने टकीला या शैंपेन के बारे में देखा, तो वो कंट्री ही अपने बारे में क्लेम करे कि हमारा प्रोडक्ट है। सेकेंड, प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ जीआई टैग्स बाय अदर्स। तो इसकी जो एवरग्रीनिंग है वो किसी दूसरे के साथ नहीं की जा सके। एवरग्रीनिंग जो कि खास करके मेडिकल फील्ड में होती है, एक दवाइयाँ है उसकी कंपोजिशन को यूज कर करके लोग उसी हिसाब से उसको रिपीट बनाते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से रजिस्टर कर देते हैं। तो दिस आल्सो प्रिवेंट्स दिस। थर्ड, help consumers to get quality product of desired rates and it assure of the authenticity। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप सिल्क की साड़ी ले रहे हो, कांचीवरम की साड़ी ले रहे हो, तो कांचीवरम आप नहीं जानते हो इन पर्टिकुलर, बट जब आप मान लो you pay more for it, but at least you get the assured quality for that, right? And how it is ensured? Because of the GI tag, क्योंकि there is a validation that the product is specific to this reason. So quality product and desired rate, उसके ये लक्षण होंगे, उसका ये फीचर्स होता है। एंड अश्योरेंस ऑफ द ऑथेंटिसिटी, क्योंकि वो उस हिसाब से आ रहा है, उस जगह से आ रही है, तो ऑथेंटिसिटी ऑटोमेटिकली वो इंश्योर हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज प्रोमोट्स इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी। तो जैसे कि आप बात करते हो कि मान लो कि जैसे कि हैंडलूम के बारे में बात करते हैं, किसी रीजन से आती है, जैसे कि अगर झारखंड का एक एग्जांपल लेते हैं कि सोहराई और खोबर अगर पेंटिंग है और इन पेंटिंग को अगर बहुत जगह किया जाता है, तो उस जगह पे क्योंकि जो करने वाले आर्टिजन्स हैं, पेंटर्स हैं, तो उनको एक क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो उसको वो स्प्रेड कर पाते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक अलग अलग रीजन के हिसाब से भी आप कर सकते हो कि किसी भी अगर पंजाब का कोई प्रोडक्ट है, असम का कोई प्रोडक्ट है, केरला का कोई प्रोडक्ट है, तो उस रीजन के उस लोकलाइट लोगों को वो एम्प्लॉयबिलिटी देती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो हमने देखा लीगल, हमने देखा अनऑथराइज्ड यूज, हमने देखा उसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट देखा, इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट देखा, हमने उसका कल्चरल एस्पेक्ट देख रहे हैं कि कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स एरिया, किसी भी एरिया के बारे में, उसकी कल्चरल रिचनेस के बारे में, एरिया की बारे में भी वो दिखाता है। अच्छा, इसी हिसाब से आप देख सकते हो कि इट इज दिस रीजन वाई कि तमिलनाडु का इंडिया में रैंक नंबर 1 है अंडर द जीआई रजिस्ट्रेशन। सबसे ज्यादा इंडिया में अगर कहीं जीआई टैक्स रजिस्ट्रेशन है तो वो तमिलनाडु के अंदर में है। इसके अलावा 64 अप टू द डेटा ऑफ अप्रैल 2024 उत्तर प्रदेश के पास 64 प्रोडक्ट्स हैं जो कि जीआई रजिस्टर्ड है। अगर किसी सिटी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, हो सकता है कि ये यूपीएससी में, आगामी यूपीएससी भी पूछा जा सकता है, अपकमिंग फोर्थकमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन कैन आल्सो आस्क अबाउट which area or which city has the most number of GI registration, then you will say that it is the वाराणसी। वाराणसी जो है वहां 18 जो है GI टैक्स मिले हुए हैं प्रोडक्ट के ऊपर में, that we are going to take in the later on slides।
और अगर किसी कम्युनिटी के बारे में बात करोगे तो इट्स द ट्राइबल कम्युनिटी. यस, इट्स द ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया दैट एक्चुअली शोज देयर डाइवर्सिटी, shows their distinctiveness, shows their uniqueness all over the country. तो जिनके पास सबसे ज़्यादा है, तो इट्स द ट्रूली सेड कि क्यों जो उनकी जो लोकल कम्युनिटी के अंदर में जो उनकी जो एक ट्रेट है कि डिस्टिंक्टिव कल्चर, दैट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम दिस ओनली कि जीआई में सबसे ज़्यादा किसी कम्युनिटी को टैग मिला हुआ है, रेस्ट्रिक्शन मिला हुआ, तो वो ट्राइबल कम्युनिटी को मिली हुई है. रिवाइजिंग अगेन, रिक्लेमिंग अगेन, अगर किसी स्टेट को सबसे ज़्यादा मिला तो वो तमिलनाडु में है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश. किसी रीजन को सबसे ज़्यादा स्टेट टॉपिक को एरिया को सबसे ज़्यादा मिला है तो वो है वाराणसी. नेक्स्ट थोड़ा सा आप जान जाओ एक इसके हिस्टोरिकल क्या कहते हैं कि इंडिया में जो इनकी बिगिनिंग हुई थी कि जीआई, इनिशियल जीआई टैक्स जो इंडिया में मिले थे वो अप्रैल 2004 से लेकर 2005 के बीच में मिले थे. ये फर्स्ट डेटा वो है, उसको आप याद रखो, ठीक है. 2004 से 2005 में मिले थे, उसके ग्रुप में मिले थे. एंड आपको ये पता है कि 2003 में जो जीआई टैग है वो इंडिया में अप्लाई हो गया था, ठीक है. तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट था इंडिया में जो कि जीआई जिसको मिला था वो दार्जिलिंग टी है. तो दार्जिलिंग टी के नाम को यानी कि वर्ड को और उसके लोगो को दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है अदर अदर कैटेगराइजेशन में जो कि एग्रीकल्चर में आती है. दैट एक्चुअली ऑरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल. तो दिस इज द दार्जिलिंग टी लोगो एंड यू नो द दार्जिलिंग टी नेम. ये पहली प्रोडक्ट आती है, इसी कैटेगराइजेशन अब याद रख लो, एग्रीकल्चर के अंदर में आती है और स्टेट है वेस्ट बंगाल. सेकंड है अरनमूला कनाडी, ये है हैंडीक्राफ्ट जो कि केरला से आता है, ठीक है. ये हैंडीक्राफ्ट है. दिस इज अ मिरर दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम अगेन केरला. एंड द थर्ड प्रोडक्ट दैट एक्चुअली गॉट GI tag initially in the first wave of the certification is पोचमपल्ली इकट. So this is the kind of print pattern you can see. और ये टेक्सटाइल पे, साड़ीज पे ये मिलती है. ये तेलंगाना से, ये भी हैंडीक्राफ्ट के अंदर में आती हैं. तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है कि किनको किनको मिला था. तीनों को आप पिक्चर वाइज देख लो. ये कुछ 18 लिस्ट है जीआई टैग्स के जो कि फ्रॉम वाराणसी से टैग्ड है. नॉट टू गो इन वेरी डिटेल क्योंकि मेरी यूपी पीसीएस की बुक आने वाली है, तो मैंने सोचा कि जिनके लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है वो अपना एक कैन हैव अ काइंड ऑफ अ ग्लैंस ओवर द थिंग. तो पहली जो प्रोडक्ट आई थी 2009-10 में आई थी वो थी बनारसी ब्रोकेड एंड साड़ीज दैट एक्चुअली कम्स अंडर हैंडीक्राफ्ट. और जो लेटेस्ट जो 2024 अप्रैल में जो आई है वो है बनारस मुरल पेंटिंग, बनारस की ठंडाई, शहनाई, लालपेड़ा, करोंदा, वाराणसी, लाल भरवा मिर्च, तबला, पान, लंगड़ा, आम, ये सब जो है बनारस की, इनको जीआई टैग्स मिला हुआ है. नो with no offense कि बनारस has got the one in the city wise, in the town wise is one of the most cultural distinctiveness and a diverse place in India. It is also called the cultural capital of India. So yes, and continuation with my book, यूपी की 64 जो GI टैग्स हैं उनके बारे में भी एक छोटी सी लिस्ट है जिसको आप स्टॉप करके आप देख सकते हो. So this was all about GI. I hope कि for the upcoming GI examination, keeping in mind its political importance, policies importance, its economic based importance, cultural importance, or you can say that in the form of international relation and IPR also importance. This topic is one of the most essential topic for the UPSC forthcoming UPSC examinations. Yes, having said that, it is one of the most underrated topic also, but when I went to the topics list along with like Buddhism, Jainism, and in cultural topic, I found also GI to be one of the most important to not to overlook in any sense. So yes, the next batch for the Super IAS is going to commence from 1st of July 2024. This will be the offline batch, and this will held in here in Ranchi, Jharkhand. Being facilitated by like pan-Indian facilitator, you can say that the teachers and even the authors we have collaborated with to bring you to the best of UPSC result-driven preparation in any city. And I can very proudly say that कि from Study IQ, from KSG IAS, from Pratyogita Darpan,
and from you favor people are actually joining for the upcoming as a faculty for your batch. ऐसे 6 से 7 टीचर्स होंगे, not only daily based but also you can say that कि tech based, to give you the best ideas, the writing, the teaching and the kind of like the conviction towards एक स्मॉल टर्न जो होता है लोगों के अंदर में डर होता है उसको हटाने के हिसाब से एक हमारी कोशिश है कि एक सार्थक प्रयास किया जा सके। इसके बारे में ज़्यादा इंक्वायरी के लिए आप 9470137694 पे आप कॉल करके ज़्यादा इंक्वायरी ले सकते हो। एंड फॉर द नेक्स्ट सेशन we will see you soon for the all the aspirants taking up their UPSC examination on 16th. I wish you all the best, and those who are not able to perform anywise do join as like in remedial classes. The charges would be like absolutely normal, not on the line of the daily based institutions, because we aim to provide you the best on the list of the cost of the economies. All the best guys, see you soon in the next session. Thank you.